Hey guys, welcome to a new episode of the Stories with Rusty podcast. आज मैंने बात करी है अवी के साथ, who's an expert in the VR and the AR space, and मेरी और अवी की बात ना बहुत टाइम से हो रही है, and it's only मतलब अभी हम टाइम मिल पाया है इसको रिकॉर्ड करने का, but this conversation is going to get you excited. अगर तुम already VR AR के लिए excited नहीं हो तो तुम आज हो जाओगे इस conversation के बाद. I can promise you that you learn a lot because I learned a lot, and मैं चाहता हूँ तुम लोग इस एपिसोड को पूरा देखो. नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, तो आगे पीछे स्किप करो. यू विल लर्न अबाउट व्हाट VR मींस, हम कहां जाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, बुरी है, क्या स्कोप है करियर का, तुम इसमें कैसे घुस सकते हो. ऑल दीज पार्ट्स have been covered and बड़ा मजा आया मेरे को बात करने में अभी के साथ. आई एम श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको और चीजें दी हैं अभी ने जिनको तुम और पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ताकि तुम्हारा एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाए. एंड लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू द कन्वर्सेशन. हाउ आर यू? व्हाट डू यू डू? आई नो व्हाट डू यू डू. टेल टू माय ऑडियंस कि तुम करते क्या हो. यार मैं पिछले 8 साल से वर्चुअल रियलिटी इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, इन सब के क्रॉस सेक्शन पे हूँ. I've also worked as a medical imaging scientist, and a job of a medical imaging scientist is basically making the computer understand कि computer को ये बताना कि जो medical images होती है like CT, MRI, ultrasound scans, इन images में problem क्या है. जैसे कि सपोज अगर कोई कैंसर है तो वो कैंसर किस पर्टिकुलर स्पेस पे है, ये सब चीजें, उसको रीजन बाउंड करना, ये सब चीजें जो होती है वो तरह का काम, प्लस यूजिंग द डेटा इन वर्चुअल रियलिटी एट द फर्स्ट प्लेस, ब्लेंडिंग दीज टू टेक्नोलॉजीज लाइक XR plus healthcare. What is XR? So, XR is sort of the umbrella term for augmented reality, virtual reality, and X is basically a variable. So X को replace करके आप A कर दो, V कर दो, C कर दो. C is cinematic realities. What is cinematic reality? The virtual production and stuff. So the VFX, virtual production, things like that. I mean, this world is so fascinating for me from an outsider, so, which is why I was interested in having this conversation with you also, ना कि यार मेरे को पता चलेगा कि ये दुनिया काम कैसे करती है. Like we have two very important contexts here. A is the umbrella context कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, and B, which is more important for me personally and more something that I would like to focus on more, is Indian context कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है. Like for the understanding of the basic understanding of the audience, हमारा green screen का scope इतना है कि अगर कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी है तो उसके पीछे कुछ नहीं आएगा, उसकी शक्ल दिखेगी. ये होता है ग्रीन स्क्रीन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ. How did you get into this world? So it started in 2013 when I started as a iOS developer. So I used to code for iOS phones and things like that. So then I simply get some sort of games, कुछ games मिलने लगे, and वो games पे Cocos 2D हम लोग use करते थे. They were 2D games. Then I got introduced to Unity, and it was a beautiful game engine back then. The Unity 3.5 version we were using, which was a very early version, but still it was stable and very good. So then I realized a whole new world, क्योंकि जब आप एक game build कर रहे होते, you are sort of a god for that game. Yeah. You can craft the simulation as the way you want. So वैसा कुछ, so वो fascinating लगा मुझे, and I was like यार इसी पे research करना है. Starting में तो नहीं पता था, but then later on I realized, because I am a self-taught learner, so I realized कि किस तरीके से graphics actually produce होते हैं. The math is very intensive. Graphics को produce करने की काफी ज़्यादा graphic processing लगती है, बहुत सारी parallel processings होती हैं. It's a science. So it's a science. Let me dumb it. मतलब I'll need you to dumb it down for me. ठीक है? मैंने 8th क्लास के बाद साइंस नहीं पढ़ी है. ठीक है? मैथ्स पढ़ा है मैंने. मैथ्स मेरे पास 12th तक था, but साइंस नहीं थी. So this understanding of physics, this understanding of, like, I have a layman's understanding. मुझे पता है कि अगर मैं फोन छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा, क्या करूं, वो फिजिक्स मेरे को पता है क्या होता है. But if I were to get into this world of VR, into this world of augmented reality, like, okay, more context. मैंने अपनी लाइफ में एक बार VR हेडसेट पहना है, बस एक बार. वो भी क्योंकि मेरे ऑफिस में एक बंदा था, वो लेके आया था, मेरे को बड़ा कूल लगा था. दिस वाज आई थिंक 4 or 5 years ago. मैंने उसको लगाया, उसने मेरे को गार्डन में खड़ा कर दिया, मेरे को लगा ओहो बहुत ही बढ़िया, इसे सर हिला रहा था मैं, बहुत बढ़िया लगा. उसके अलावा आई हैव हैड नो VR एक्सपीरियंसेस. सो फॉर अ लेमैन टू गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ दिस VR, AR, एटसेट्रा, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एंड व्हाई शुड वी बी फैसिनेटेड विद दिस वर्ल्ड? ऐसा क्या है इसमें जो शायद हम एक्नॉलेज भी नहीं कर पाएंगे आज तक? सबसे पहला कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म्स के साथ जो तुम्हारा इतनी बड़ी ऑडियंस है, the message I would like to convey कि virtual reality बस गेमिंग के लिए नहीं है. So a lot of people, पहला जो इंटरेक्शन होता है virtual reality के साथ वो गेम्स का होता है. इनफैक्ट मेरा खुद का भी जो पहला इंटरेक्शन था ना, वो एक गेम के थ्रू था. So what I want to convey is virtual reality is the next medium, and like your mobile phone is a medium, right? What kind of content you consume on your mobile phone? It's like everything.
फिटनेस कंटेंट इज देयर, एंटरटेनमेंट इज देयर. सो हर तरह का कंटेंट आप किसी भी मीडियम पे कंज्यूम करते हो. इट्स द नेक्स्ट मीडियम एंड इट्स आल्सो इंटरैक्टिव. सो इट्स टू वे इंटरैक्शन. इट्स नॉट लाइक अ ब्रॉडकास्ट जैसा आप टीवी पे देखते हो. इट्स अ टू वे इंटरैक्शन. यू कैन आल्सो इंटरैक्ट विद द कंटेंट इनसाइड. एंड जो हम इसमें करने की कोशिश करते हैं, इट्स लाइक व्हाट इज रियलिटी एट द फर्स्ट प्लेस. सो रियलिटी को अगर समझाना हो तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में डाल दो लोगों हाँ, को. एग्जिस्टेंशियलिज्म में डालना पड़ेगा. क्योंकि तुम्हें जो भी कुछ मिल रहा है वो तुम्हारे पांच से ज्यादा ही होता है. खैर, पांच सेंसेस के थ्रू मिल रहा है, राइट? सो विद योर आईज यू सी समथिंग, विद योर ईयर्स यू लिसन समथिंग, एंड दैट्स हाउ यू क्राफ्ट योर रियलिटी, योर परसेप्शंस, योर मेमोरीज एंड थिंग्स लाइक दैट. इन वर्चुअल रियलिटी द वेरी गोल, अगर मैं गोल की बात करूं तो वो यही रहता है कि हम किस तरीके से आईज को हाईजैक करें, अपने ईयर्स को हाईजैक करें एंड उन्हें ऐसा फेक कंटेंट दे जो हमारा ब्रेन ऐसे परसीव करे जैसे ये एक रियल कंटेंट एंड रियलिटी है. So that is the broader meaning of virtual reality itself. ये हमारा गोल होता है. The better the technology is improving, the better we are going towards that direction. So sorry to interrupt. What stage, according to you and your experience, is that technology abhi 2021? Like the 4 year ago me would have had one example, but uske context mein, what stage are we at right now, and where are we going? Virtual reality aspect में AR में बाद में आऊँगा. So right now we are at the stage कि हाइपर रियलिज्म नहीं है. एंड हाइपर रियलिज्म नहीं होने का रीजन जो अभी सिर्फ एक चीज बची है, एंड दैट इज हमें जितना भी प्रोसेसिंग है अभी ऑनबोर्ड करना पड़ता है. सारा प्रोसेसिंग मैंने बताया ना, मैथ इंटेंसिव है ये चीज. तो जीपीयूज को यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स को बहुत ज्यादा इंटेंसिव काम करना पड़ता है. एंड राइट नाउ आई हैव हेडसेट राइट हियर. Everything has to be packed on that chipset जो तुम्हारे headset पे already लगा हुआ है. So there's a limitation of how many triangles we can process, how many triangles, how many vertices we can process. ये please समझाओ मेरे को. मतलब I understand that polygons का triangle का concept होता है, पर इसको थोड़ा elaborate करोगे? हाँ, थोड़ा सा करेंगे. बट सो बेसिकली कोई भी ग्राफिक जो भी आप देखते हो, दो तरीके होते हैं जिस तरीके से ग्राफिक्स रेंडर होता है. वन इज बेसिकली रे ट्रेसिंग. रे ट्रेसिंग इज अ कॉन्सेप्ट लाइक जैसे आप रियल वर्ल्ड में लाइट फॉलो करती है, रियल वर्ल्ड में लाइट किसी सीन को इलिमिनेट करती है, लाइट ऑन हुई और पूरा कमरे में लाइट हो गई, राइट? सो उस कॉन्सेप्ट को जब हम फॉलो करने जाते हैं तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रे ट्रेसिंग. और रे ट्रेसिंग बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव है. यानी कि ये 80s का टेक्नोलॉजी, पर 80s में तो कर पाना इम्पॉसिबल ही था. ठीक है, जो रेंडर फार्मिंग वगैरह सुनी हुई है, कोई भी अगर एनिमेशन मूवी देखी होगी, सो दैट इज बेसिकली द बाय प्रोडक्ट ऑफ रे ट्रेसिंग. उसमें आप रेंडर फार्मिंग करते हो, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगा के एक साथ प्रोसेस करते हो. आपने सुना होगा कि कितने मंथ्स लग जाते थे एक फ्रेम प्रोसेस होने में. I've read Toy Story 2 की जो Toy Story 2 के ऊपर बहुत टाइम लगता है. It's not an easy task. It literally takes months to process one scene, 1 second का scene. हाँ, but the kind of rendering we use in real time rendering, what we call, or that is basically called rasterization. Rasterization is the hack of ray tracing. It's not actually ray tracing, but it's a hack of generating the graphics using some sort of algorithm. So इसमें बेसिकली अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, जैसे सपोज ये फोन है, ये मुझे डिफाइन करना है कि ये फोन कैसा होगा एक कंप्यूटर को. सो आई हैव टू डिफाइन कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे. सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टेक्स, लाइक वर्टिसेस. ठीक है, एक सिंगल पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं और ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को वर्टिसेस बोलते हैं. सो इन वर्टिसेस को के कॉम्बिनेशन को जब हम रेंडर करते हैं, यानी कि एक 3D स्पेस में डाल देते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू. वेक्टर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा यूज होती है. जब आपने प्लॉट कर दिया सारे पॉइंट्स एक स्पेस में, एक किसी ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद तुम उसे रेंडर कर सकते हो, यानी कि उसको इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो, उस मैथमेटिक्स को, कि पॉइंट की पोजीशंस को. उस पे फिर बहुत सारी और भी साइंस आ जाती है, जैसे कि उसकी शेडिंग कैसी होनी है. जो सुनने में इंटेंसिव लग रहा है, हाउ इज दिस लेस इंटेंसिव देन रे ट्रेसिंग? प्रोसेसिंग वाइज इट्स लेस इंटेंसिव. प्रोसेसिंग जो करनी पड़ती है, इसको टोटल प्रोसेसिंग करने में जो टाइम लगता है, सो कंप्यूटर्स को वो कम लगता है कंपेयर टू रे ट्रेसिंग. रे ट्रेसिंग में इट्स लाइक यू आर काउंटिंग लाइक मिलियंस. फॉर एग्जांपल, अगर एक इमेज 1980 टाइम्स 1080 का इमेज है, सो 1980 टाइम्स 1080 रेज जो है फायर करी जाएंगी फॉर ईच पिक्सल. एंड ये रेज जाके हर एक ऑब्जेक्ट जो भी सीन है,
हर एक ऑब्जेक्ट जो भी सीन में एग्जिस्ट कर रहा है उससे बाउंस करेंगी एंड उसका कलर ले लेंगी। द होल कॉन्सेप्ट इज कि अगर इस रेड चीज पे कोई रे बाउंस करती है तो अब उस रे का कलर रेड हो रेड जाएगा। है। हाँ, एंड रेड पे बाउंस करने के बाद सपोज यहाँ पे ग्रीन पे बाउंस करी तो रेड प्लस ग्रीन उसका जो ब्लेंड होगा वो कलर पिक्सल का हो जाएगा। सो दैट्स हाउ ईच पिक्सल इज बीइंग असाइंड अ कलर एंड दैट्स हाउ द इमेज जनरेट। सो इट्स अ वेरी इंटेंसिव प्रोसेस कंपेयर टू व्हाट आई एम टेलिंग। अच्छा, so एंड it's हाँ गो अहेड। So that is the rasterization is a real time graphic generation process जिसका इस्तेमाल करके हम वर्चुअल रियलिटी वगैरह रन करते हैं। So हम जैसे जैसे इस प्रोसेस को क्लाउड पे शिफ्ट कर पाएंगे, क्लाउड पे शिफ्ट करने में अभी हमें क्या रोक रहा है, जहाँ प्रोसेसिंग हमारे सर पे नहीं हो रही है, जहाँ हमारे प्रोसेसिंग हमारे सर पे नहीं हो रही है, कहीं और एग्जैक्टली हम क्लाउड पे जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो लिमिटेशन है कि हमें इतनी बड़े बॉक्स में ही करनी है सारी प्रोसेसिंग, वो खत्म हो जाएगी। इट्स लाइक नाउ यू हैव द अल्टीमेट, तब हम होराइजन और ओएसएस जैसी चीजों पे टारगेट कर पाएंगे। ओह, एंड कब तक होगा ये? फ्रॉम एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव कब तक होने की उम्मीद है ये सारी चीजें? 5G is the biggest change। 5G जो है हमें 10 Gbps का उसका जो है मैक्सिमम पीक स्पीड मिलने की संभावना है 5G के साथ, टेस्ट बीइंग डन। सो 5G जैसे ही आता है उस पे ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसीलिए स्टेडिया एक गूगल ने रिलीज करा था इसी चीज को लेकर कि सारी क्लाउड कंप्यूटिंग एंड थिंग। या सो वर्चुअल रियलिटी भी जब हम क्लाउड पे शिफ्ट कर देंगे देन विल सी मोर बूस्ट इन रियलिस्टिक ग्राफिक। स्टिल नाउ you can feel things। There is a company called B Haptics and they have a product called Tesla Suit। So this Tesla Suit is like $300 का सूट है। पहले तो $15,000 का हुआ, हाँ बहुत सस्ता है। पहले $15,000 का हुआ करता था। आई रिमेम्बर 2017 का 17 का मैं नंबर बता रहा हूँ। हाँ, so it's like 2 साल पहले ये $15,000 का सूट था। Now you can order in $300। Even I was surprised। So this is a haptic suit, यानी कि सपोज अगर तुम्हें गेम में गोली लगती है so you can feel in real world कि तुम्हें कहाँ पे किस पॉइंट पे हिट हो रहा है। प्लेयर रेडी प्लेयर 1 की याद आ गई मेरे को सबसे। Exactly that is the same technology। तो हमें वहां पहुंचना है, that is the goal that we are at। That is the goal कि जो भी तुम जैसे भी तुम रियल लाइफ में चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हो the same way it should happen in the virtual world। Exactly that is the goal। But isn't that, I mean, पिक्चरों पे तो देख के लगता है बहुत डरावनी चीज है यार कि I mean you disconnect from your actual reality into a virtual world। Exactly, थोड़ा बहुत डरावना मेरे को भी लगता है in the sense कि how the social will look like in the sense कि जैसे हमने cities form करी है ना वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, to be very honest। कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। If I can stay in my home, अगर इस कमरे के अंदर या फिर इस एरिया के अंदर रह के मैं पूरी दुनिया से इंटरेक्ट कर सकता हूँ in a way that I would interact in the real world, why would I go out? मैं नहीं जाऊंगा बाहर, मैं कभी भी नहीं जाता बाहर। और बिजनेस में भी इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इमेजिन दिस कि ऑफिसेज, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफिसेज रखे हैं और वो रात को खाली छोड़ते हैं उसे, राइट? तो वो उनका वेस्ट हो रहा है। और तुमने घर पे रेंट दे रहे हो बट तुम उसे दिन में खाली छोड़ते हो, उसका वेस्ट हो रहा है। सो इट्स लाइक घर पे रहो एंड यू कैन, देयर आर टूल्स लाइक स्पेशियल, देयर इज अ टूल कॉल्ड स्पेशियल। अभी 2020 में इस चीज पे बहुत काम हुआ है थैंक्स टू 2020। ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा हम लोगों ने कम से कम 5 साल का लीप ले लिया है in virtual reality space। So it's like Spatial जो है, it's like the collaboration tool। I'll share you the video of it and you can literally collaborate with your team in several ways। It's like was this the video you sent me कल सुबह using that tool? You sent me a video where you were performing in that was another that was a social platform called Artspace VR। और उस पे एक कम्युनिटी है called Educators in VR, which is the biggest community in the world of virtual reality educators। So there I was invited, so that I shared। So this tool and बहुत सारी companies ऐसे tools build रही हैं। Spatial is a good tool। Microsoft ने एक tool build करा है recently called Microsoft Mesh। एंड सो इस तरीके के टूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप एक ऑफिस को कंप्लीटली, मतलब लोगों को काम करने के लिए एक सेम स्पेस में होने की जरूरत नहीं है। एंड ऐसा हम लोगों ने बहुत बार करा है। मैंने वर्चुअल रियलिटी पॉडकास्ट करे हैं, जो इवेंट आपने बताया वो भी करा है, बट लाइक कोलैबोरेटिव वे में किस तरीके से बेस्ट व्हाट कुड बी द बेस्ट कोलैबोरेटिव टूल्स। सो उसके लिए वो स्पेशल और माइक्रोसॉफ्ट मेश जैसे टूल्स है। So I'm assuming that the people who are working in this space are aware कि बुरी चीजें क्या हो सकती हैं and they are trying to work around it and still go for it। I'm assuming। Yeah।
इसमें पता है कि हमें क्या पता है कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी तुम टेक्नोलॉजी के साथ ऑलरेडी कितना ज्यादा एंगेज कर रहे हो, लाइक लोग घंटों एंगेज कर देते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी इवन ग्रो विद दिस सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर श्योर। बट अगेन इसको सोल्यूशन के लिए क्या है कि हमने फिजिकल मूवमेंट के भी टूल्स बनाए, लाइक अगर तुम सिंपल बीट सेबर को ही ले लो, now in Oculus already have the built-in tracker कि तुम कितने calories burn कर रहे हो while using your games and something like that. So you can literally do exercise. There are so many fitness apps on my headset. To be honest, in my mind there is no doubt कि ये future है। आज से 10 साल बाद this will be the mainstream। हमारे फोन वोन सब बर्बाद हो चुके होंगे, हम नहीं कर रहे होंगे फोन वोन की चीजें यूज। If not VR particularly, AR is the next thing. I am personally more excited for AR. Yeah. Personally, Facebook is working on an AR project which is called Project ARA, ARA. So Project ARA पे वो काफी चीजों, it's like even like there is a science of technology, I mean branch of technology called brain computer interface, BCI, and there's a technology called Open BCI, उसके साथ कोई भी start भी कर सकता है BCI में काम करना। हाँ so Facebook एक प्रोजेक्ट आरा में ब्रेन वेव्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है ऑगमेंटेड रियलिटी को इफेक्ट करने में। इट्स लाइक यू डोंट हैव टू थिंक कि तुम क्या टाइप करोगे, इट्स जस्ट लाइक जस्ट थिंक एंड टाइप, so something like that. You were telling me about BCI. Continue. Yeah. So BCI is like ब्रेन वेव्स को अंडरस्टैंड करके उसको किस तरीके से कमांड्स में बदलेंगे। सो हम ब्रेन वेव्स को स्कैन करते हैं। सो तुमने उसके EEG के बारे में सुना होगा, लाइक ब्रेन पे बहुत सारे छोटे-छोटे इलेक्ट्रोड्स लगे। I've seen it. It's like a helmet you're wearing. The brain waves. हाँ। So BCI is like हमें पूरा ब्रेन रीड करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ पार्ट जो है ब्रेन के वो हम रीड कर सकते हैं। दिस पार्ट बेसिकली जो हमारा साइड का बेल्ट है, आई एम नॉट गुड विद न्यूरोसाइंस, so मैं उसका नाम एग्जैक्टली भूल जाता हूँ। So उसको केवल रीड करके तुम ये बता सकते हो कि जो अफर्मेशंस है वो किस तरीके के। फॉर एग्जांपल तुम 3 सिलेक्शंस में से क्या सोच रहे हो, तुम लेफ्ट वाला सोच रहे हो, राइट वाला सोच रहे हो, बीच। तो बेसिकली हम एक तरह का माउस क्रिएट कर सकते हैं, and with that the technology is leading. Neuralink में काफी रिसर्च चल रहा है। So ये सब टेक्नोलॉजीज के साथ we are blending ourselves more with these technologies. We are already cyborg. If you hold a phone in your hand, you're connected to the world. That's true, man. I mean, so I did my masters in digital humanities, ठीक है? And this is the first thing that we were taught वहाँ जाके कि देखो अभी जो तुम टेक्नोलॉजी से एंगेज कर रहे हो, that is not even the tip of the iceberg. In the next 10 years, technology is going to overrun and overtake your normal life. And तुम्हारी डिग्री तुम्हें 10 साल बाद तब काम आएगी, ये बोला था उन्होंने मेरे को। But I can see that happening. This is what I have spent the last year and a half of my life studying, like academically studying. कि टेक्नोलॉजिकली आगे हम बहुत सारा जाने वाले हैं। जो लोग कहते हैं ना कि फोन वोन से दूर रहा करो, यूज मत करा करो, I tell them कि तुम बहुत ही बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, तुम्हारी टेक्नोलॉजी लाइफ में आप एब्सोल्यूट आप कर ही नहीं सकते। There's no way you would rather go and live in the jungle, and तब भी तुम फोन यूज करोगे because अब तुम्हारी लाइफ वैसी नहीं है कि तुम उससे दूर भाग सको। There is no way you can detach yourself from the digital or the cloud or the internet or whatever. And I think it's better that we embrace it and then work towards using it in the best possible manner to, grow ourselves, society-wise, humanity-wise. But VR तो चलो एक चीज है। Tell me about what's happening in the world of AR, because I personally am more excited for AR. बीच में Google Glasses आए थे, वो चलो was a failed first attempt, but I think it was important. But I would rather be wearing just एक ये ऐसा चश्मा and have my entire life be here. कि मेरे को दिख रहा है कि अगर मेरा कुछ WhatsApp वगैरह यहाँ चल रहा है तो यहाँ चल रहा है, मेरे को दिख रहा है मेरे चश्मे में, I can interact with it आराम से. That is more exciting for me. What are your views on AR versus VR? इस समय जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो मशीन है ऑगमेंटेड रियलिटी, दैट इज Microsoft's HoloLens and HoloLens 2 actually, the second version of HoloLens, and that technology is amazing. Why? क्योंकि तुम देख सकते हो, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है इन कंपैरिजन टू VR. AR is much more complex क्योंकि तुम्हें सीन अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, यानी कि सपोज तुम अगर कुछ भी दिखाना चाहते हो तो तुम्हें उस इंफॉर्मेशन को किसी चीज के ऊपर ओवरले करना है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी इंसान को देख रहे हो, उसका चेहरा देख रहे हो, सो सपोज यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द एज, तो तुम उस इंसान के चेहरे के बगल में एक नंबर दिखाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल कि ये 27 साल का है, ठीक है? अब उस केस में तुम्हें पता होना चाहिए चेहरा कहाँ पे है। सो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। मशीन्स को ये बताना, कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम है ये,
कि मशीन्स को ये बताना कि एक्चुअली क्या चीजें हैं, उनका क्या सेंस बन रहा है, कौन सी चीज टेबल है, कौन सी चीज दीवार है, एंड एग्जैक्टली कितनी दूरियों पे है और कितने क्या डायमेंशंस हैं उसके. सो ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की हैं, एंड माइक्रोसॉफ्ट मेश इज डीलिंग विद दैट बहुत अच्छे तरीके से. सो इसमें अभी तुमने देखा होगा कि जो रिसेंट फोन आया है एप्पल का, एप्पल 12 जस्ट प्लस. थिंकिंग ऑफ दैट, मेरे दिमाग हाँ, में वही चला so था कि एप्पल तो काफी कुछ कर रहा they have LiDAR है. and LiDAR का मतलब क्या है, यानी कि तुम सपोज एक बॉटल को अगर तुम देख रहे हो, so click the picture with your phone. I don't have the 12th one, so if click the picture with your phone and उससे कई सारे रेज निकलते हैं. LiDAR is basically infrared lighting sensor. ठीक है, उससे बहुत सारे रेज निकलते हैं. इट्स लाइक 100+ रेज निकलते हैं. जो फ्रंट कैमरा है इसका, उससे और ज्यादा रेज निकलते हैं, बट बैक वाले से अबाउट 100+ रेज निकलते हैं. एंड वो रेज कुछ नहीं करते हैं, वो रेज बस तुम्हें ये बताते हैं कि वो कितनी दूर पे जाके हिट हुए हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे हिट हो रहे हैं, सो यू गेट अ नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर रे कि ये 2 मीटर पे हिट हो रहा है. उसके जस्ट नेक्स्ट वाला रे जो है वो 1 ही मीटर पे हिट हो रहा है. सो लाइक 2 मीटर और 1 मीटर के बीच में कुछ है. हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट, just like that. So उसका 3D मैप बन जाता है एक कंप्लीट, एंड देन उसका जो पिक्चर लिया जा रहा है नॉर्मल कैमरा से, उससे उसका फिलिंग हो जाती है, यानी कि उसका शेडर कैलकुलेट हो जाता है कि उस पर मटेरियल कैसा होगा. सो उन दोनों को ब्लेंड करके यू गेट द इंटायर, तुम एक्चुअल मॉडल्स को रेप्लिकेट कर सकते हो व्हाटएवर यू आर लुकिंग एट इन रियल लाइफ. पहले भी होता था. सो सपोज देयर इज अ साइंस कॉल्ड फोटोग्रामेट्री. उसमें क्या होता है, आप कोई भी चीज देखते हो, पेड़ पौधे, एक्चुअल म्यूजियम के अंदर रखी चीजें. हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे काम करे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम्स में कुछ चीजें रखी हुई थी. आई डिडंट हैव टू गो देयर. मैंने बंदे को बोला कि हर चारों तरफ से फोटोज ले लो उसकी, एंड देन वी पुट इन अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज अ फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर. वो हर एंगल से उसे कैलकुलेट करके उसका 3D मॉडल बना देता है. सो इट्स लाइक अभी 3D मॉडल में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, बट दैट इज लाइक द मोर नेचुरल वे ऑफ डूइंग दैट. Processing heavy है, but and doing all of the stuff on a single phone, it's बहुत इंटेंस है ये, और ये एप्पल ने करा. सो kudos to them. हम contemplate नहीं कर पाते कि इसमें कितना दिमाग, मेहनत, पावर लगती है. Right. I think that is one of the reasons that VR and AR is not as exciting for people, because हमको समझ ही नहीं आता है. मेरे को समझ नहीं आता. मेरे को तो पता है कि क्या हो रहा है थोड़ा बहुत, but मेरे को फिर भी समझ नहीं आता. So my question here is this: what do you think will it take for this technology to become mainstream? जैसे हम सबके हाथ में आज एक फोन है, ये होने के लिए कि हम सबके पास एक AR सॉफ्टवेयर, AR वो हो कुछ, या फिर VR हेडसेट हो, what will it take? So, जो लास्ट पॉइंट है उसी में इसका आंसर भी है कि समझ ही नहीं आता कि ये टेक्नोलॉजी काम कर कैसे रही है. एंड द आंसर इज कि समझने की जरूरत भी नहीं है. जरूरत ही क्या है. सो बहुत सारी और भी चीजें भी तो हम नहीं समझते टेक्नोलॉजी के बारे में. कॉमन पर्सन को नहीं पता है कि जब वो एक कॉल मिलाता है तो कितनी जगहों से राउट होती है. राइट. वो सैटेलाइट तक जाती है, तुम्हारा एक कॉल सैटेलाइट से जाता है, उसके बाद फिर दूसरे पर्सन तक जा रहा होता है. राइट. सो we don't have to understand all the science behind that. So it's just like कि हमें उसे use कैसे करना है. So whatever the skill you have, जो भी skill है, for example आप एक YouTuber हो, आप VTuber बन सकते हो. VTuber is like people who are doing this sort of streams in virtual character formats. So they have their own virtual character. I have a friend called Phia, PHIA. So you can search his channel, her channel, and वो क्या करती है कि मतलब वो हर VTuber है and virtual character उसका ज़्यादा famous है उसके actual identity से. So whatever the skill you have, no matter what, you can find some ways to blend with these technologies. So I know people जो dance करते हैं virtual reality में. I know a journalist, Gayatri Parmeshwaran, who's doing amazing job in connecting with journalism and virtual reality. उसका एक होम आफ्टर वॉर करके डॉक्यूमेंट्री भी बहुत फेमस है. सो इस तरीके से व्हाटएवर द स्किल यू हैव, यू डोंट हैव टू वरी मोर अबाउट टेक्नोलॉजी. यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू यूज इट, एंड दैट इज इजी पार्ट. गिव मी अ रियल लाइफ एग्जांपल. यूज करते हो, गिव मी अ रियल लाइफ एग्जांपल. मैं क्या कर सकता हूं VR में पर्सनली? गिव मी अ टिप. सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने तुम्हारे बहुत सारे इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देखे हैं. ठीक. इंस्टाग्राम के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो फिल्टर्स होते हैं दैट इज एक्चुअली AR. सो फिल्टर्स पे आप जो भी यूज करो, सो AR के थ्रू किस तरीके से तुम शॉर्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल तुम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, व्हाट इफ इंफॉर्मेशन भी उस चीज के साथ में दिख रही हो. सो व्हाटएवर द एडिटिंग, जो एडिटिंग से बाद में डाला जाता है, वो रियल टाइम पे भी डाल सकते हैं. सो ऑगमेंटेड रियलिटी इज जस्ट रियल टाइम एडिटिंग ऑफ दोस वीडियोस और रियल टाइम. हाँ, सो समथिंग लाइक दैट. So that's how anybody can use it. ठीक है, चलो मेरे को समझ आ गया कि मैं क्या कर सकता हूँ. What kind of processing power do I need right now कि मैं खुद से कर सकूँ? ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए तो बस एक अच्छा फोन, थोड़ा आईफोन वगैरह है तो और भी अच्छा है ना. तो एक अच्छा फोन जिसमें आप एक
वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप देख सकते हो आपका फोन जो है वो AR कोर सपोर्ट करता है या नहीं करता है. So अगर आपका फोन AR कोर सपोर्ट करता है, इट्स अ हाई चांस दैट इट कैन डू रियल मिरेकल्स. सो काफी अच्छी चीजें हो सकती हैं इस पे. सो AR कोर अगर फोन सपोर्ट करता है, सो इट्स लाइक मोस्टली सभी चीजें कर सकते हो. एंड अच्छा चलो ठीक है, पता है मेरे पे डिवाइस भी है, पता भी है क्या करना है, सीखो कहाँ से जाके कि क्या करता है, कैसे करता है. एक्सपेरिमेंट विद लाइक यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो कि कौन से 10 बेस्ट एप्स हैं वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी के, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, एंड प्ले अराउंड दैट एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि ओके ये चीज ऐसे होती है, हाउ कैन आई फाइंड वे टू यूज इट इन माय ओन वर्क. सो फॉर एग्जांपल कोई एक ऐप है जो बिजनेस कार्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन दिखाता है या समथिंग लाइक दैट. आई डिड अ लॉट ऑफ दोस सॉर्ट ऑफ एप्स एंड वी आर बिल्डिंग some more cool apps for augmented reality. So बहुत जल्दी आ जाएंगी. So इस तरीके की apps को तुम use कैसे कर सकते हो and then try to figure out कि क्या market में available है, what I want to do and how to blend with those two. Okay, ठीक है. I mean, sounds interesting. मैं आपको साथ तो मारने वाला हूँ मैं. Tell me from your personal perspective, what is your job exactly as an expert in this field? So यार पहले तो मेरी एक कंपनी है अपनी, ठीक है. So that is like Unitile Studios and that is a service based company. Okay. So we are giving service to like we are working with Jio in India और इंडिया में इसके अलावा तो और कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं है जिसके साथ काम कर रहा हूँ. Jio पे के साथ अभी हम काम कर रहे हैं और इसके अलावा US के काफ़ी क्लाइंट हैं. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एक क्लाइंट एक म्यूजियम के साथ काम कर रहा है. इसके अलावा थोड़ा डबलिन के कुछ जो म्यूजियम्स वगैरह हैं और जो साइट प्लेसेस वगैरह हैं उनके साथ काम कर रहे हैं. So something like that. So वो कंपनी what is the work there, like services, what do you virtual mean reality and augmented reality simulation creation. Sometimes it's like some sort of application they require. For example अगर कोई म्यूजियम है तो उसे म्यूजियम को virtual reality में भी विजिट करवाना है. अभी 2020 में यही हुआ, जितने भी म्यूजियम्स वगैरह है ना उन सभी को रिक्वायरमेंट थी. हाँ, क्योंकि एक्चुअल तो लोग आ नहीं रहे. हाउ दे गोना अर्न. सो वर्चुअली लोग म्यूजियम्स विजिट कर सकें. जब पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में है तो आप कैसे चीजों को विजिट कर सकते हैं. I worked on a project like this. वहाँ पे मेरा एक असाइनमेंट था एक म्यूजियम के वर्चुअल उसमें, like to convert a museum into a virtual reality project. We spent a couple of months doing that. बड़ा ही fascinating था वो, मजा आ गया था उसको करते. Since I am earning good enough amount, at least in my perspective, कि मैं अब मेरे को उससे चल जाता है. So I'm also started this non-profit called XRDI, जिसका मैं टी-शर्ट पे अभी पहन के बैठा हूँ. So XRDI is basically, हाँ मैं भेजता हूँ. XRDI is आप मेरा साइज बता देना, साइज मतलब अपना बता देना. M भेज दो यार, M भेज दो. ठीक है. Sorry, continue. Yeah. So XRDI में हम बेसिकली ये करते हैं कि नॉन प्रॉफिट है. पहली बात, हम किसी भी कोर्स या किसी भी सेशन का चार्ज नहीं करते हैं. एंड सो फार वी बीन इनटू 20+ यूनिवर्सिटीज, 10,000+ स्टूडेंट्स, और इन सभी जगहों पे हम जाके वर्चुअल रियलिटी के बारे में कन्वे करते हैं. इट्स लाइक अगर किसी को वर्चुअल रियलिटी में इंटरेस्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो चैलेंज है, मेरा जो गोल है, इट्स लाइक आई वांट टू क्रिएट अ मिलियन डेवलपर्स इन वर्चुअल रियलिटी. सो दैट इज लाइक अ 10-year गोल फॉर मी. सो अगर मैं ये मिलियन लोग जनरेट कर सकता हूँ जो वर्चुअल रियलिटी में कोड करते हो, so it's like I can create the virtual reality, India को virtual reality capital बना सकता हूँ मैं. That is the goal I'm working towards. So it's like much more bigger than myself itself, but I'm working towards that. So उसके लिए हम free सब कुछ free है. And we are working on entrepreneurial program जिसमें कई सारे students हमारे साथ सीख रहे हैं. 70+ का हमारे volunteers हो गए हैं इस समय. तो it's a growing community and yeah, we are helping as much as we can. I think one of the things. Sorry, go ahead. थोड़े बहुत रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं जो इस कम्युनिटी को भी वैल्यू जनरेट करने में और मनी जनरेट करने में हेल्प करेंगे. पर्सनली आई एम प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ लाइक एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट. इट्स लाइक अगर तुम्हारा कुछ भी सामान कभी खोया है, सो उस सामान तक वापस पहुंचाने का तुम्हें एक लिंक दे सकता है वो प्रोडक्ट. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट. And another is very close to my heart. I'm working on Bhagavad Gita VR. So Bhagavad Gita VR is another thing which I want to give life to, at least in some ways. What do you mean? Please elaborate. मेरा भी बड़ा, like I'm fascinated. Tell me. Yeah. So like हमारी जो जनरेशन है, इट्स लाइक पहले अगर तुम 20 साल पहले की बात करो जितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी होगी वर्सेस अभी की बात करो जितने लोगों ने भगवद गीता एक्चुअली किताब के साथ पढ़ी होगी, नंबर इज रियली लेस. एंड नंबर अगर तुम इसी को ग्राफ को फॉलो करो, नंबर और भी कम जाता जाएगा. सो व्हाट इज द वे कि हम
अपने जो भी हमारी नॉलेज है उसको आगे कैसे ट्रांसलेट करेंगे. द वे इज टू डिजिटाइज द कंटेंट, द वे इज टू उस कंटेंट को प्रिपेयर कर दो अगली जनरेशन के लिए. कंटेंट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एक्चुअली, द मीडियम ऑफ द कंटेंट, जैसे वो मीडियम जिस मीडियम पे वो कंटेंट सर्व करना है हमें उसको प्रिपेयर करना है. सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट. सी वर्चुअल रियलिटी के साथ मैं भगवत गीता को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ. सो एंड ये मेरा हमेशा से सपना था यार, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी, व्हेन द फर्स्ट टाइम आई वेंट इनटू वर्चुअल रियलिटी, आई गेस आई वाज लाइक इसमें कुछ भी मैं कर सकता हूँ, कुछ भी इमेजिन कर सकता हूँ. व्हाई नॉट जस्ट इमेजिन गॉड. सो आई वाज लाइक कि मेरे को ये करना है. अनदर बुक आई एम राइटिंग, सो आई एम राइटिंग अ बुक which is about 10 steps of like 10 levels of virtual reality. So working on that book as well. So वहाँ मैं 5 साल के बच्चे से बताना स्टार्ट करता हूँ, एंड लाइक हर उम्र का इंसान वर्चुअल रियलिटी को किस तरीके से अडॉप्ट कर सकता है या क्या किस पार्ट में इंटरेस्टेड होगा. आई एम डूइंग रिसर्च ऑन दैट. सो अगर कोई 65 साल का है तो उसे क्या चाहिए वर्सेस. दैट्स गुड. आई मीन दैट इज इंटरेस्टिंग. ये तो मेरे को मतलब मुझे बताना, मैं 25 का हो जाऊंगा, मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए. बट ओके, माय क्वेश्चन हियर, एंड आई थिंक दिस इज द रीजन, इस क्वेश्चन के थ्रू ही लोग ज्यादा वर्चुअल रियलिटी के अंदर घुसना चाहेंगे. What scope does it have from a career perspective? Because if you want to incite younger people in kids in school, kids in college, into this world of virtual reality, what A is the scope of कि तुम क्या कर सकते हो इसमें, क्या कमा सकते हो, and B, what are the requirements that you, what is the mental aptitude you need to have? क्या तुम्हें साइंस कॉमर्स पढ़ी होनी चाहिए इसमें घुसने के लिए? All those kind of things. कि if a person wants to get into this world professionally, not from a content creator perspective but professionally, developer perspective या फिर कुछ भी, what do they need to know? Artist perspective, कुछ भी, what do they need to know? What should they have? So यार सबसे पहले तो बहुत सारे तरीके हैं वर्चुअल रियलिटी इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के. इट्स लाइक जब कोई भी गेम बनता है या जब कोई भी वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस बनता है तो उसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं. लाइक स्टार्ट्स फ्रॉम द राइटिंग इटसेल्फ कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है. ठीक है, तो उसकी पूरी राइटिंग होती है जो डिजाइनर करता है, एंड एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है जिसे जीडीजी, जिसे बेसिकली जीडीडी कहते हैं, गेम डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट. Oh yeah, I've had this conversation with निखिल है माय ब्रे. निखिल के साथ, निखिल या अविचल, अविचल के साथ, this exact conversation I've had with अविचल. But go ahead. तो ये पहले पूरा होता है कि आप पूरा इलैबोरेटिव वे में आप प्लान कर लेते हो कि बेसिकली आपको करना क्या है. अनदर स्टेप उसके बाद फिर आता है कि उसके आप कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हो. सो अगर कोई आर्ट में बहुत अच्छा है, देख इमेजिनेशन में बहुत अच्छा है, दे कैन ज्वाइन विद कॉन्सेप्ट आर्ट, उस तरीके के काम कर सकते हो. उसके बाद फिर उसकी 3D मॉडलिंग स्टार्ट होती है, प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट होती है. प्रोटोटाइपिंग लाइक अगर कोई कोडर है और उसे रियल टाइम प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को फेस करना और रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद है, सो दे कैन अलाइन विद देयर सेल्फ विद फास्ट रैपिड प्रोटोटाइपिंग वगैरह. सो प्रोटोटाइपिंग आप करते हो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, MVP जिसे बोलते हैं. हाँ, तो ये सब करने के बाद फिर आप मार्केट टेस्टिंग करते हो, सॉफ्ट लॉन्च करते हो. तो इस तरह बहुत सारे फील्ड्स इसमें इन्वॉल्व है. एक रिगर होता है, एक एनिमेटर होता है, एक लाइटिंग आर्टिस्ट होता है, बहुत सारे होते हैं, टेक्सचर करने वाले लोग होते हैं. तो हर तरीके से इसमें इन्वॉल्व होने के तरीके. एंड लाइक अगर कोई बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर किसी को पजल सॉल्विंग पसंद है ना, पजल सॉल्विंग इज द अल्टीमेट. अगर किसी को पजल सॉल्विंग पसंद है तो वो वर्चुअल रियलिटी में बहुत इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 3D, और 3D चीजें कैसे 3D चीजें एक साथ फिट टुगेदर होती हैं, लाइक एक पूरा रूबिक क्यूब जैसा बन जाता है. एंड that's what you solve in that. So it's like a big puzzle. I was very good with puzzle solving, and that's why I was good with code. So ऐसा नहीं कि उल्टा था. So from what I'm getting it, and since I've had this conversation before also, crux वहाँ पे यही निकला था कि अगर तुमको इस फील्ड में घुसना है. हाँ, go ahead. Also would love to add one more thing which is very important. मैंने अभी recently educators in VR में जब इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करा, इंडियन XR कम्युनिटी को, so I created a map basically. जो यूजुअली हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या मैप है और कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, क्या क्या फील्ड पे काम कर रही हैं, किस किस तरीके की. बट ऐसा कोई मैप एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इंडियन इकोसिस्टम का. सो आई बिल्ट अ पिक्चर, अ मैप, जो मैं तुम्हें सेंड करूंगा, प्लीज स्क्रीन पे डाल देना. सो इट्स लाइक इट शोज कि कितनी कंपनीज जो हैं इन्वॉल्व हैं इस तरीके में, एंड काफी सारा है. सो इट्स लाइक 2500 से भी ज्यादा कंपनीज इस समय वर्चुअल रियलिटी का काम करती हैं इंडिया में. सो इट्स लाइक अगर तुम ये सब सारी ट्रिक्स जानते हो, ये सारे तरीके जानते हो, स्किल डेवलप कर लेते हो वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड, सो यू विल गेट अ जॉब, एंड जो उसका ग्रोथ है वो भी नॉर्मल इंजीनियरिंग जॉब से ज्यादा ही है. सो इट्स लाइक 18% मोर, 18 to 20% मोर. You can screen share it अभी. या सो इसमें देखो हार्डवेयर की कंपनीज हैं बहुत सारी,
यानी कि अजना लेंस, जैसे कि अजना लेंस के फाउंडर के साथ मैंने कन्वर्सेशन भी करा था, काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था. ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. जियो ग्लास के साथ आई एम वर्किंग विद जियो ग्लास टीम, and Nemo Planet is coming with one revolutionary headset. There is one more headset which is coming, which is Question What's Real, QWR. बहुत सारी कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, इंडिया में भी काम कर रही है. टाटा की अपनी पूरी एक फैसिलिटी है अबाउट वर्चुअल रियलिटी. एक्सेंचर काम कर रही है, महिंद्रा ने काफी इन्वेस्टमेंट करा है. एंड जितनी भी जैसे आईटी बॉम्बे का नाम अभी काफी फेमस हुआ है रिसेंटली गेम डेवलपर प्रोग्रामिंग को लेकर, बट रियलिटी ये है कि ऑलरेडी सारे आईटीज में किसी ना किसी वर्चुअल रियलिटी रिलेटेड एक कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. आईटी खड़गपुर में है, आईटी भुवनेश्वर ने पूरी फैसिलिटी स्टार्ट करी है, जिसे मार्केट नहीं करता है, वो बस मार्केट नहीं करता है प्रोडक्ट से. हाँ, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो न्यूज नहीं आती है. ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज है, जैसे हमारी XRDI कम्युनिटी है, वैसे और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो काम कर रही हैं. VRARA है विच इज अ ग्लोबल कम्युनिटी वर्किंग इन इंडिया. VAMRR है जो पूरे मतलब एक एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी है. वी हैव मोर फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी, जो सारे बिजनेसमैन हैं वर्चुअल रियलिटी में, एज वेल एज स्टूडेंट्स. सो वी आर सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज बिटवीन देम. एंड बहुत सारे कंपनीज हैं जो अलग अलग तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सर्विसेज में तो बहुत ज्यादा कंपनीज हैं. I can also see arcades. Oh, I see arcades also. I see arcades also. Education also. I see e-commerce also. What's happening in e-commerce? अच्छा, e-commerce में हाँ. I get it. It's a product तुम try कर सकते हो virtually. हाँ, फ्लिपकार्ट ने एक पूरा इंजन था स्कैपिक करके, जो वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी का पूरा इंजन हो गया था. यू कैन क्रिएट योर ओन वर्चुअल रियलिटी सीन इन दैट स्कैपिक. सो अभी उसे एक्वायर करा है. So Flipkart is probably coming up with some good virtual reality content on their site. So like जैसे already IKEA वगैरह कर रहे हैं कि आप actually visualize कर सकते हो augmented reality में. So something similar is we are going to see with Flipkart as well. Lenskart तो already करता ही है. Lenskart तो already करता ही है. Lenskart तो चश्मा पहना देता है. Yes, Lenskart तो बहुत समय से कर रहा है, like 5+ years. Oh wow. I think you can close this. देख लेंगे लोग. जो Spotify पे सुन रहा है वो प्लीज YouTube खोल के देख लेना. टाइम स्टैम्प तुम्हें मिल जाएगा. I think you can pause the screen share बंद कर दो. So I think अगर आपके पास ये स्किल है, so आपके लिए काम की कोई कमी नहीं होगी. एंड ग्रोथ भी काफी अच्छी है इस इंडस्ट्री में. पूरी इंडस्ट्री ग्रो करी है. इट्स लाइक अप्रोक्सीमेटली $6 billion का जो एस्टिमेट है वो इंडिया से है. सो $6 billion बाय 2022, अगले साल तक. 2020, हाँ अगले साल तक. End of 2022 we can expect $6 billion industry in India. And global industry की बात करें same 2022 तक, so that number is like even bigger, 160 billion. Ultimately the crux of this conversation is कि अगर तुमको इस फील्ड में घुसना है, जो कि तुमको घुसना चाहिए, whatever capacity if you are a youngster or whatever you're doing, just try and get your hand with it, because A, this field is going to blow up, and B, there is no barrier of entry in the sense कि तुम्हारे को कोई exact वो requirement नहीं है कि तुमको इतना नंबर चाहिए इस फील्ड में घुसने के लिए, या तुमने ये पढ़ा होना चाहिए, ये नहीं पढ़ा होना चाहिए. You can have any skill, you can have any passion, and you can still be involved with this world. जैसे कि हमने बताया कि concept artists भी कर सकते हैं, writers भी कर सकते हैं, designers भी कर सकते हैं, coders भी कर सकते हैं, engineers भी कर सकते हैं. So it's a space that is going to become one of those core technologies जो हमारी life define करेगी. Is what I see this as. आगे 5 या 10 साल बाद भी, जैसे आज वो core technology हमारा phone. Inevitable future है ये. ये inevitable future है, इससे आप दूर भाग नहीं सकते, उसको आपको embrace करना ही पड़ेगा. And if you started it at the right time, I think तुम्हारे बहुत ज़्यादा फायदे भी हो सकते हैं. नहीं होंगे तो तुम mainstream consumer की तरह यूज कर सकते हो उसको. What do you think will it take for a mainstream consumer to start using? नहीं तो हमने वो बात करी कि समझने की जरूरत नहीं है, बट वो क्या प्रोडक्ट होगा जो वो मार्केट तोड़ेगा कि अब सबके पास है. सभी प्रोडक्ट्स होंगे. सो फॉर एग्जांपल जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, जब मोबाइल फोन स्टार्ट हुए थे, वी कुड नॉट हैव इमेजिन्ड कि हम सब्जियां ऑर्डर करेंगे अपने जोमेटो और स्विगी से, राइट? सो हर इंडिया में वर्चुअल रियलिटी तब पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम में आएगा जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि अब अगर नहीं आ रहे हैं तो भाई पूछा ही. और हमेशा हर टेक्नोलॉजी के साथ यही होता है, चाहे वो एप्स देख लो, हम in some sort of ways we are copying the existing product of Uber वगैरह, है ना. Uber का कॉपी ओला and things like that. But again अपनी भी इनोवेशन बहुत सही लगती है.
But virtual reality में भी it's like we are going to come up with all the products जो जितनी कंपनियां हैं सभी को पता है कि मतलब यही inevitable future है and they are already doing their research कैसे हम इसे blend करें. इंडिया में जियो ग्लास का नाम लेना बहुत जरूरी है. जियो ग्लास is coming with the headset जो काफी cheap भी होगा. जियो ने already एक बार 4G को सब तक पहुंचाया है. 4G हाँ mainstream कर दिया. So they already have the data कि किसी भी टेक्नोलॉजी को mainstream कैसे बनाते हैं. So I think उसके साथ टेक्नोलॉजी ब्लेंड होने वाली है तो काफी ज्यादा चांस है and that is coming this year only. Oh, इस साल आ रहा है जियो ग्लास. Wow. Yes. I mean to be honest, we don't give Jio enough credit for what they did for 4G. हम बस मजाक उड़ाते रहते हैं कि जियो के आने के बाद इंटरनेट खराब हो गया, बट तू यही बोलता है कि इंटरनेट पहुंच ही गया. अफ्रीका में अभी तक यही है कि अफ्रीका में भी हमारी कम्युनिटी चलती है. दैट्स व्हाई आई नो दिस कि अफ्रीका में अभी भी यही है कि व्हेनेवर दे हैव टू कनेक्ट इन सम सॉर्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी रूम सो दे फाइंड हम लोग वीआर चैट में कनेक्ट करते हैं या आर्ट स्पेस में कनेक्ट करते हैं. सो वो क्या करते हैं उन्हें बहुत वो अभी भी साइबर कैफेज वगैरह यूज करते हैं. डेटा प्लान्स बहुत महंगे हैं. मोबाइल पे तो आप यूज ही नहीं कर सकते वैसा कुछ है. तो दे हैव टू फिगर आउट कि मिनिमल पॉसिबल क्या है. सो वी क्रिएटेड द मिनिमल पॉसिबल रूम फॉर देम सो दैट दे कैन द African community को join there, so things like that. तो हमें अभी भी वहाँ पे वो crisis है data का. But I remember going to a cyber cafe. I think 10th or 11th class would have been the last time I went to a cyber cafe. उसके बाद cyber cafe तो नहीं गया हूँ मैं. But again, it's fascinating how far technology can advance in just a short span of time. Like one example was तो $15,000 वाला सूट, $1 वाला सूट जो $300 में मिल रहा है. जो $300 में मिल रहा है. I've been reading up on what Facebook has been doing with Oculus, and I can, from what I understand, it's a remarkable shift from where they started. अभी कौन सा Oculus आया? 2 आया, 3 आया, क्या है Oculus Quest 2. So Quest 2 के बारे में एक और चीज है. ये पहले अगर तुम सपोज 2 साल पहले Quest 2 जैसा केपेबल हेडसेट लेने की कोशिश करो, so उससे कम केपेबल ही मिलता है and cost would be like पूरा सिस्टम बिल्ड करने में 3 से 5 लाख तक खर्चा हो जाता. And now you can buy the system in buy the headset itself in 40,000. Amazon पे मिल जाएगा तुम्हें. So अभी हाँ Oculus Quest 2 चाहिए heavily subsidized. Can you hook me up with someone who would send me something like this? I don't want to invest 40,000 rupees from where मतलब. I'll try to hook you up. Yeah. Please. I'll try to hook you up. I have people. Yeah. Okay. So हाँ तो मतलब ये सारी चीजें हैं कि और कॉस्ट किस तरीके से कम हो रही है. प्लस गेमिंग लैपटॉप से भी कम कॉस्ट है. सो आई थिंक अब जो गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं नाउ दे कैन इन्वेस्ट. जो वर्चुअल रियलिटी आर्केड्स वगैरह जाते ही हैं. मुंबई में वेयर इज योर होम? मुंबई में या कहीं और? दिल्ली. ओके. मुंबई में जीरो लेटेंसी इज अ मस्ट विजिट. अच्छा. What do those guys do? I'm sure a lot of people listening to this will be from in and around Bombay. So it's a arcade. It's a arcade kind of thing, and basically तुम अपने दोस्तों के साथ जैसा एक टैग टीम मैचेस होते हैं जैसे कि पेंट बॉल होता है वैसा कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हो वर्चुअल रियलिटी में. You will be fighting zombies with your friends and things like that. So dude, I have never played a VR game, ठीक है, because मेरा headset ही बटन है, but I've been fascinated with what PlayStation does with their VR thing. तो मेरा वो खेलने का बड़ा मन है. If I get my hands on it sometime, तो वो मैं खेलूंगा. तभी मेरे को Oculus चाहिए. मैं देखना चाहता हूँ कि how is that experience? And I think that is what fascinates people also. कि virtual reality का experience होता कैसा है? क्या मैं actually लगेगा नहीं लगेगा? And I think this place is very very fascinating and interesting because again inevitable है. इससे तुम भाग नहीं सकते किसी भी तरीके से. I think mainstream. I believe mainstream इसको Jio ही करेगा इंडिया में तो at least. Because no, I don't. Is there anyone who is working? I mean, if you can give me this information, जो consumer headset पे Ajna Lens भी काम कर रहा है, and they also have a headset in ranging 50,000 के आसपास का range का उनका भी headset है. Okay. And so that is another option, but I think they have to. They are now working on building the ecosystem for the consumer product. They are more focused on the army, so they are doing great stuff for army. कैसे आर्मी के उन्होंने पॉडकास्ट पे शेयर करी है सब चीजें कि आर्मी के टैंक्स को किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं. एंड या सो Ajna Lens is the another competitor. Nemo Planet is coming up. Nemo Planet का ऐसा कुछ होने वाला है कि जितने भी existing ऐप तुम्हारे फोन पे हैं तुम इसे AR में एक्सपीरियंस कर सकते हो उसके ग्लास के साथ. So AR पे you just put on AR glasses और तुम फोन का डेटा जो भी मैसेजेस वगैरह AR पे तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो. हाँ. Instagram वगैरह तो फोन पे चला सकते हो. वाओ. मतलब उस पे AR ग्लासेस चला सकते हो. Yes. Have you used Google lenses जो आए थे, ग्लासेस थे, क्या थे वो?
Google Lenses is mostly about बहुत छोटा सा उसका हेडसेट डिस्प्ले था, यानी कि उसका जो वो था जिसपे वो AR दिखता था, इट्स हार्डली तुम उस पे कुछ मैसेजेस ही शो कर पाते थे, राइट? सो और उसके अलावा जो लिमिटेशन था, इट्स लाइक मोर, इट वाज मोर अबाउट द कैमरा। उस पे ऑलरेडी एक साइड पे एक कैमरा लगा हुआ था। स्नैपचैट ग्लासेस में भी 2 कैमरे लगे हुए हैं, स्नैपचैट ग्लासेस, राइट? तो उस पे एक कैमरा लगा हुआ था, एंड दैट कैमरा कुड रिकॉर्ड थिंग्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, लाइक अ फर्स्ट पर्सन रिकॉर्डिंग ऑफ योर रियलिटी। सो उसके साथ मेरे एक डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू करा था, डॉक्टर शाफी अहमद, एंड डॉक्टर शाफी अहमद इज लाइक एन आइकन इन हु इज ब्लेंडिंग विद वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी विद हेल्थ केयर। सो ही इज नोन फॉर दैट। सबसे ज्यादा टेक सेवी डॉक्टर वही है, सो ही इज वेरी कूल। I interviewed him and he mentioned कि उन्होंने जो पहली वर्ल्ड की पहली गूगल ग्लास पे सर्जरी करी थी, इट वाज अ हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी, गूगल ग्लास पे उन्होंने रिकॉर्ड करी थी। सो जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो क्लियरली उनको देखते हुए कर सकते हैं। डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, एंड दे कैन डू द रिकॉर्डिंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, सो थिंग्स लाइक दैट। So I think, I mean, tell me what you think of this. I think this technology, the VR, AR, is going to be less about like consumers को पता भी नहीं चल पाएगा in the next 10 years later कि हम इसको VR, AR यूज कर रहे हैं. It will mostly be in the world of medical world, या फिर warfare वाली दुनिया, या फिर I don't know, maybe governance की दुनिया में, कि इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे, I think मैं कोई contemplate भी नहीं कर पा रहा हूँ the scope that this thing has in our lives, which won't be, हम खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या कर सकता है, but of course medical field में भी नहीं है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वर्चुअल रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं करा जा सकता है। हाँ, that's what I'm thinking कि ऐसा क्या फेज हो सकता है जिसमें वर्चुअल रियलिटी यूज नहीं हो सकती। एजुकेशन में अगर किसी को यूज करना है, एजुकेशन में सबसे बड़ा प्रोडक्ट इस समय इंडिया में है फोटोन VR करके। तो फोटोन VR इज अ कंपनी जो जितने भी सिलेबस है तुम्हारा, जो भी बच्चों का सिलेबस है, आई थिंक 8 तक समथिंग, वो उसको वर्चुअल रियलिटी में वर्चुअल रियलिटी कोर्सेज बना रहे हैं उसके। So I think that is much more recommended over Whitehead Junior or something like that. So Photon VR is very good, and ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। It's just like कुछ चीजों को करने पे ज्यादा फायदे हैं, कुछ चीजों को करने पे it's like कुछ कर सकते, ओवर द इमेजिनेशन ही हो जाएगा, कुछ को नहीं करना चाहिए, कर आप नहीं करना चाहिए, हर चीज कर सकते। हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो नहीं कर, जो फिजिकली रहे, जैसे कि think of something गेम्स वगैरह। सो जैसे फिजिकल गेम्स जितने हैं, उसको अगर तुम लोग बच्चे जाके सड़कों पे खेल रहे हैं, उसको अगर तुम वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट करोगे, सो वो फन जो है मिस आउट हो रहा है। सोशल but if we अगर तुम सोशल मीडिया को देखो, if we reach a space where there is hyper reality, मतलब hyper realistic हो जाता है, then does it not look the same? मतलब तुम गली क्रिकेट सकते हो, पर किसी का फायदा ये है कि तुम, हाँ, फायदा ये है कि तुम गली क्रिकेट खेल सकते हो तुम्हारे यूएस में बैठे दोस्त के साथ। फायदा ये है कि तुम, जो लिमिटेशन है स्पेस टाइम की, कि तुम इस एक स्पेस में जुड़े हुए, वो खत्म हो जाती है। I am looking forward to that day. मैंने बहुत दिनों से, बहुत सालों से गली क्रिकेट नहीं खेला है। The first thing I would do if there is a game for गली क्रिकेट, वो मैं खेलूंगा। सो एक और सरप्राइजिंग चीज जो देखने को मिलेगी कि लोग कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड होने वाले हैं उनके वर्चुअल रियलिटी एवेटार के साथ। एंड दे विल बी, आई एम रियली श्योर, NFTs आ चुके हैं, दे विल बी स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन देयर ओन कैरेक्टर्स, जो वर्चुअली एग्जिस्ट करेंगे, रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, बट इट विल become their identities, and people will not switch their characters over and over unless they are not scammers or something. So जो वर्चुअल रियलिटी कैरेक्टर, जो एवेटार्स होते हैं, उसके साथ तुम बहुत ज्यादा रिलेट करते हो। देयर इज अ फिनोमेना जिसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल एम्बॉडीमेंट। सो क्या रिसर्च है कि अगर सपोज मैं किसी गोरे बंदे को किसी काले बंदे की बॉडी दे देता हूँ वर्चुअल रियलिटी में, सो ही कैन फील द रेसिज्म, और इस पे एक पूरी ब्लैक करके एक डॉक्यूमेंट्री है तो इसी बारे में। अगर तुम किसी शॉर्ट बंदे को टॉल की बॉडी दे सकते हो, सो ही स्टार्ट मेकिंग द टॉल गेस्चर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ये रियल इफेक्ट कि तुम, इट्स लाइक ट्रांसेंडेंस, तुम एक पूरी बॉडी सेंस, it's an out of body experience, literally out of body experience, mental teleportation। हाँ यार, ये तो मैं देखूंगा। Is the documentary on Netflix or somewhere? Black. Well, what like I mean I think we're more or less almost done as well. बड़ा ही fascinating लगा मेरे को conversation. The documentary, it was called Black. I'll have to search that exact name. मैं थोड़ा सा search करके बताऊंगा, but it's about black lives.
हाँ मैं सर्च करके डाल दूंगा नीचे कमेंट्स में या हाँ डिस्क्रिप्शन में कहीं. बट नहीं यार, अभी हाँ. दिस वाज सच अ फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन. आई न्यू कि जब से हम वीआर के बारे में बात करने बैठेंगे, आई नो वी हैव नॉट इवन स्क्रैच द सरफेस, अभी भी हम बहुत ऊपर ऊपर से बात करके निकल गए हैं. बट आई थिंक हम्म. फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, जिनके चक्कर में आई वांटेड टू डू दिस पॉडकास्ट एंड हैव दिस हम्म. कन्वर्सेशन, was so that at least the people who are listening to this get interested in this world. They have a deeper, slightly deeper understanding कि अगर उसमें घुसना चाहें तो कोई बैरियर नहीं है, इसमें घुसना कितना फैसिनेटिंग हो सकता है. Any tips for someone who might want to start out in this field? Join a community, and Extended Reality Developers of India XRDI is a good community to join. जब आप एक कम्युनिटी में होते हो, इट्स लाइक कि तुम अभी एक बंदे को जानते हो जो बोलता है वर्चुअल रियलिटी, बट जब तुम ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हो जो सभी वर्चुअल रियलिटी पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं या कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो जो अमाउंट में तुम्हारे पास डेटा आता है उसके बारे में वो काफी वैल्यूएबल रहता है एंड लाइक काफी ज्यादा रहता है. सो यू कैन plan better ideas, you can plan better ways to do things, you know what is happening, what is not happening, what is the current update, and साथ में चीजें build कर सकते हो, लोगों से help ले सकते हो. So एक community के साथ जुड़ना is the only way to actually be a part of industry. Same with YouTube community, same with everything. So communities are really helpful. I think community is something that will also help you, मतलब motivate you ना कि ठीक है और काम करते हैं और देखते हैं और लोग क्या कर रहे हैं. और काम करते हैं, हाँ, क्योंकि जब तुम्हारे आसपास लोग काम नहीं कर रहे हैं, लाइक मैं भी करके क्या ही कर लूंगा. जब सभी लोग आसपास कर रहे हैं, इट बिकेम्स इजी फॉर यू कि अच्छा इसने करा है एंड ही इज अ गाय लाइक मी हु यूज्ड टू हैंग आउट विद मी एंड नाउ ही इज डूइंग दिस थिंग, आई कैन आल्सो ट्राई. सो कम्युनिटी सबसे बड़ा मोटिवेशन देती है. वेरी इंटरेस्टिंग. आई मीन आई एम श्योर, अरे जब अगर तुम स्नैपचैट वगैरह यूज कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी एआर में घुसे हुए हो. अगर तुम इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा रहे हो तुम ऑलरेडी एआर में घुसे हुए हो. if that's interesting for you, then by all means deep dive into it, go deeper, figure out कि तुमको क्या fascinating लग सकता है. But I think इंडिया में B2B businesses इसे काफी ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं. अभी B2C उतना नहीं है क्योंकि लोगों के पास कंज्यूमर हेडसेट्स नहीं है. It will happen soon, dude. It will happen soon. It will happen soon. It will happen very rapidly. अभी जैसे कि एप्पल भी आ रहा है अपने हेडसेट के साथ, जैसे ही वो आता है इट विल लाइक बहुत सारी हजार कंपनीज ऐसी हैं जो कॉपी करने then it becomes mainstream. The moment Apple does it, then it becomes mainstream. 2020 Apple is coming with the headset. 2020 तो गया, 2021 आ गया अब तो. Sorry, 2022. I missed the two part. Yeah. But नहीं यार, 2022 मैं लूंगा मैं Apple जैसे वो आएगा पता करूंगा Apple वाला कहाँ मिलता है. प्राइस रेंज आउट हो गया है. Should I tell you? It's $3,000. $3,000 मतलब 3 लाख. नहीं. हाँ, उस पे कुछ बड़ा फैसिनेटिंग सा है. उस पे 12 कैमरे. इंडिया में तो 10 लाख कर देगा. इंडिया का तो अलग ही रेट लगाता है एप्पल. सो वो वाला है. उस पे 12 कैमरे होने वाले एंड काफी अच्छा टेक्नोलॉजी वाइज इंप्रूवमेंट होने वाला है. नॉजिया पे काफी ज्यादा हम लोगों ने नॉजिया नहीं टच करा वीआर के बारे में. That is another fascinating subject. Please elaborate if you can, like थोड़ा सा. Nausea is basically a problem. जैसे sea sickness, motion sickness होता है लोगों को. It's just like कि तुम्हारे आई और तुम्हारे कान के अंदर एक सिस्टम होता है. There's a fluid that. हाँ, there's a fluid and there are also small hairs जो उस fluid का motion sense करते हैं. So वो hair move होते हैं fluid के साथ. So that's how you sense कि तुम move कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किस orientation और direction में move कर रहे हो. You have 3 sort of hairs to sense 3-dimensional motion. So वो करने के बाद मतलब तुम्हारी body को पता चलता है okay there is motion. So जब तुम VR में हो तुम आंखों से तो मूव कर रहे हो, तुम्हारा आंखों से तुम्हें परसेप्शन मिल रहा है कि तुम मूव कर रहे हो, बट कान से मिल रहा है कि नहीं मूव कर रहे हो, स्टेबल हो. सो इट्स लाइक अ डिसओरिएंटेशन बिटवीन दीस टू, डिसकोऑर्डिनेशन बिटवीन दीस टू. उसके कारण चक्कर आते हैं, नोजिया होता है. सो और ये हैबिचुअल भी कि जितना ज्यादा समय तुमने VR में बताया, जैसे इनिशियली मेरे को ज्यादा होता था, अभी काफी कम होता है. सो हैबिट के ऊपर भी है. I remember watching this. I don't remember the name of this series. ठीक है, बहुत पहले मुझे, but I remember this scene vividly. उसमें ये they were demonstrating virtual reality. They had headsets on and they were running on a कुछ treadmill टाइप का था जो omnidirectional था. हाँ, omnidirectional treadmills. हाँ, जिसमें तुम भाग रहे हो but तुम जगह से हिल नहीं रहे हो. You're doing everything but you're not moving. Omnidesk is the company which is working on these sort of treadmills. काफी अच्छा research है वो भी. Very fascinating. And I'm sure जिसको हल्का सा भी इंटरेस्ट होगा VR में, उसका इंटरेस्ट अब डबल हो चुका होगा, because मेरा हो गया है. I am going to hold you up on the offer कि मेरे पे Oculus भिजवाना है अब अभी तुमको. I need an Oculus Quest 2 at my home. कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ.
कर रहा हूँ. Let me get somebody जो need sponsorship or something. So I'll try to get that. बिल्कुल मेरे को भिजवाओ एक Oculus 2 में, एड्रेस तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा. Oculus 2 आ जाएगा जिस दिन, उस दिन वीडियो बनाएगी Oculus 2 पे. I want to experience this virtual reality world यार. मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह करके देखूं VR वगैरह में. Let's see what happens or how interested will the audience be, will they understand. मैं समझ पाता हूँ क्या कितना वो सब. But okay, this has been fun यार अभी. I had a lot of fun. I knew it will be a lot of fun, but sorry for तुम्हें इतना टालने के लिए, but no worries, no worries, man. This was fun, man. We'll keep in touch so that I can get, like, you are my access to community of XR. तो मैं तुमको बहुत fun करने वाला हूँ. ठीक है? For the audience, I'm sure you will have had a good time. Thank you Avi for doing this. मेरे को बड़ा मजा आया. I'm sure audience को भी बड़ा मजा आया होगा. And tell me if you have any final words and we'll end this otherwise. Yeah. Nothing much, nothing different. So yeah, thank you for hosting me, and it was amazing experience. थोड़ा समय लगा, but it was good. It was really interesting. मजा आता है यार बात करने में. अच्छी. Yeah, love to talk. Okay, that was it for this one. मतलब मुझे बड़ा मजा आया. I hope तुमको सीखने को मिला हो. Make sure कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अगर तुम Spotify पे सुन रहे हो तो follow, share. The podcast has to go higher ताकि मैं और अच्छे गेस्ट ला पाऊँ, तुम्हारे से और इंटरेस्टिंग बातें कर पाऊँ. तो तुम्हारा काम है इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. एंड अगले हफ्ते फिर आना पुराना, मतलब नया एपिसोड सुनने के लिए. पुराने नहीं देखे अभी तक तो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में. Spotify पे भी हर जगह जाके पुराने एपिसोड देखो. एंड I'll see you in the next one. Goodbye.